हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विथ लक्ष्मी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो बुक है फ्लेमिंगो इंग्लिश, उसका चैप्टर 1 उसकी लाइन बाय लाइन समरी को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए स्टार्ट कर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर के ऑथर हैं अल्फोंस डॉरेज। 1840 to 1897 was a French novelist and a short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. जो राइटर हैं, इनका टाइम पीरियड है 1840 टू 1897 और ये एक फ्रेंच के नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये जो लास्ट लेसन है चैप्टर, ये उस समय में सेट हुआ था 1870 एंड 71 के टाइम में, जब फ्रांस और रसिया का वॉर चल रहा था, जिसमें जो फ्रांस है वो हार जाता है क्योंकि उसको हरा देता है प्रसिया, जिसको लीड कर रहे थे बिस्मार्क। प्रसिया उस समय जो नेशंस ऑफ जर्मनी है, पोलैंड है एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया है। इस समय प्रसिया को जर्मनी के नाम से जानते हैं। इस स्टोरी में फ्रांस जो है, उसके जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं ऑल्सेस एंड लॉरेन, उसको वो हार जाता है, वो प्रसियन हैंड में चले जाते हैं। तो हमको इस स्टोरी में यही पढ़ना है, तो इसका इफेक्ट स्कूलों पर क्या पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. The narrator, whose name is Franz, got late at his home for the school. Mr. Hamel, who is his teacher at school, Franz had a fear that he would receive rebuke from his teacher because teacher would ask question about participle and Franz did not know anything about this. फ्रांस जो कि नरेटर है, जिसने ये स्टोरी नरेट की है, वो उसको क्या होता है, घर पर लेट हो जाता है। मिस्टर एम हैमल उसके टीचर हैं। फ्रांस को डर होता है कि जब वो स्कूल जाएगा तो उसके टीचर गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, क्योंकि उसके टीचर क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं पार्टिसिपल पर, और फ्रांस को पार्टिसिपल के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि उसने पढ़ाई नहीं की होती है, तो उसको डर होता है कि ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूँ और जब मैं स्कूल जाऊँगा तो मुझे डांट पड़ना। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. Franz thought of not going to school. He thought of spending the day in the open because the weather was so warm and shining. At the edge of the jungle, birds were making noise. In the field, German soldiers were exercising. All this was more attractive than rules of participle. But Franz did not do that. He quickly went to school. फ्रांस ने सोचा कि वो स्कूल नहीं जाता है, पूरा दिन वो बाहर स्पेंड करेगा, क्योंकि जो वेदर था ना वो बहुत ज़्यादा वार्म था, शाइनी था, और जो जंगल के किनारे पे जो बर्ड्स थी वो नॉइज़ कर रही थी, और ओपन फील्ड में जो जर्मन सोल्जर्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। ये सारा कुछ फ्रांस को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था एज़ कम्पेयर टू जो पार्टिसिपल का रूल है उसके। लेकिन फ्रांस सोचता है, मतलब फ्रांस क्या करता है, ये सारी चीज़ें इंजॉय नहीं करता है, वो जल्दी से स्कूल के लिए चला जाता है।
When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? Franz walked past the town hall. He saw a crowd in front of the notice board. Since last 2.5 years, notice board displayed bad news. The battles lost by France, the orders to join army, the orders of the head of the Prussian army. France did not stop at the town hall. He wondered what could be the matter. टाउन हॉल से जब वो पास होके फ्रांस जाता है तो वो देखता है कि नोटिस बोर्ड के पास बहुत भीड़ लगी होती है। फ्रांस सोचता है कि ये पिछले और 2.5 साल से जितने भी बैड न्यूज़ है ना इसी नोटिस बोर्ड पे लगते हैं, चाहे वो फ्रांस ने जो बैटल हारा है वो जो जर्मन से, तो वो सारे बैटल या फिर ऑर्डर आर्मी ज्वाइन करने वाले ऑर्डर थे या फिर हेड ऑफ द प्रशियन आर्मी का कोई ऑर्डर था। फ्रांस ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि ये नोटिस बोर्ड के पास इतनी भीड़ क्यों है, सारे बैड न्यूज़ तो यहीं लगे होते हैं कि, लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है। मतलब ये चीज़ पता करने के लिए फ्रांस वहाँ नहीं रुकता है, बस ये सोचता रहता है कि अब क्या मैटर हो सकता है कि इतनी भीड़ लगी हुई है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." Then Franz walked quickly towards school. The blacksmith watcher was reading the bulletin. His trainee was also with him. Watcher called Franz and told him not to hurry. Watcher further told Franz that he would reach school before time. जब फ्रांस जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहा था तो जो ब्लैक स्मिथ था वॉचर, वो बुलेटिन को पढ़ रहा था और उसके साथ जो उसका ट्रेनी था वो भी था। तो वॉचर कहता है फ्रांस को कि जल्दी मत करो बच्चे, मतलब अभी तुम्हारे पास टाइम है और टाइम से तुम पहले पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. Franz thought that Watcher was joking about him, so he kept walking quickly. Franz was breathing fast when he reached the garden of M. Hamel. फ्रांस को लगा कि जो वॉचर है वो जोक कर रहा है, फ्रांस को लगा मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ तो ये मेरा मजाक बना रहा है, तो इसलिए फ्रांस जल्दी जल्दी जाता है और मिस्टर एम हैमल का जो गार्डन है वहाँ पे पहुँच जाता है। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Most of the times at the beginning of the school, there used to be a lot of activities. Sound of these activities could be heard in the street. Sound of opening and closing of desks, sound of reciting lesson together. The recitation uses to be together in loud voice. Students would close their ears with hands. Teacher used to strike his ruler repeatedly on the table. कि ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जब स्कूल स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। जैसे एक्टिविटीज़ जो रहती है ना वो स्ट्रीट जो गलियाँ होती है वहाँ से भी सुनी जा सकती हैं, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का जो साउंड होता है, सारा जो भी एक साथ कोई लेसन याद करना होता है, रिसाइट करने का जो साउंड होता है, और वो सारा जो लेसन रहता है ना वो एक साथ जो लाउड में बच्चे रिवाइज करते हैं, तो स्टूडेंट को ना अपने ईयर्स क्लोज करने पड़ते हैं अपने हैंड से, और जो टीचर का रूलर रहता है, जो उनका स्केल रहता है, उसको टेबल पे जो पटकते हैं, तो ये सारे साउंड मोस्ट ऑफ द टाइम आ रहे होते हैं। जो डेली का जो रेगुलर स्कूल का स्टार्टिंग होता है तो हर दिन ऐसे होता है। But now it was all so still. I had counted on the commotion to get my desk without being seen. But of course,
That day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. But there was no noise. Franz had depended upon the noise and activities to reach his desk without getting noticed. But that day, everything was white as if it was a Sunday. M. Hamel was walking up and down in the class. He had his fearful ruler in his hand. फ्रांस विंडो से देखता है, उसके जो क्लासमेट हैं तो वो सारे बैठे होते हैं. उस दिन कोई नॉइज़ नहीं होता है, मतलब रेगुलर वे में तो रेगुलर जो डे होता है उस दिन बहुत सारे शोर होते हैं, बच्चों के चैप्टर लर्न करने वाला नॉइज़ होता है, टीचर्स का जो रूलर रहता है उसको टेबल पे पटकने वाला नॉइज़ रहता है. लेकिन उस दिन कोई नॉइज़ नहीं रहता है. और फ्रांस नॉर्मल डे में क्या करता है, वो जो नॉइज़ रहता है उसी के मतलब उस भीड़ में छुप के वो कोशिश करता अपने बेंच तक चला जाए वहाँ पे, ताकि टीचर उसको नोटिस ना कर पाए. लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत शांत था, जैसे कि संडे हो. क्यों? क्योंकि संडे को स्कूल क्लोज रहता है और कोई भी स्कूल में शोर नहीं होता है, इसलिए फ्रांस को लगता है संडे जैसा मतलब चल रहा होता है सब कुछ. और जो एम हेमल होते हैं वो वॉकिंग कर रहे होते हैं क्लास में अप एंड डाउन, और उनका जो फेयरफुल रूलर रहता है वो उनके हैंड में रहता है. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." Franz opened the door. Everybody noticed him while he went to his desk. He felt shy and feared, but nobody said anything to him. His teacher, M. Hamel, saw him. He spoke very kindly to him. He asked him to go to his desk. He further said that they were about to start the class without Franz. All these are indications that something had changed. Everybody was serious. फ्रांस नोटिस्ड दीज चेंजेस. जब फ्रांस डोर ओपन करता है तो सारे लोग उसको देख रहे होते हैं, तो मतलब उसके लिए ये चीज़ बहुत साई फील करने वाला होता है और बहुत ज़्यादा उसको डर भी लग रहा होता है, क्योंकि उसने पार्टिसिपल का कोई रूल वगैरह भी नहीं लर्न किया है और फिर लेट भी हो गया उसको, और सारे लोग जब देख रहे होते हैं तो उसको साई फीलिंग आती है. लेकिन कोई उससे कुछ बोलता नहीं है. इनफैक्ट जो उसके टीचर हैं मिस्टर एम हैमल, वो उसको देखते हैं और बहुत काइंडली बोलते हैं कि जाओ अपने बेंच पे बैठ जाओ, और ये भी कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे, तो जाओ और अपने बेंच पे बैठ जाओ. ये सारी चीज़ें ना मतलब एक इशारा होती है कि कुछ तो चेंज हो गया है, क्योंकि उस स्कूल नोटिस बोर्ड के पास भी वहाँ भीड़ रहता है. फिर उस स्कूल में बाकी मतलब संडे जैसा लग रहा होता है, क्योंकि कोई शोर नहीं, सारी चीज़ें, और टीचर भी बहुत पोलाइटली बात करते हैं, तो और सब कोई सीरियस होता है. तो फ्रांस ये सारे चेंजेस नोटिस कर सकता था, लेकिन उसको पता नहीं था एक्चुअली में चेंज हुआ. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Franz sat on his desk. He took some time to overcome his fear. After that, he noticed that his teacher was wearing a different dress that day. He was wearing a beautiful green coat, a frilled shirt, and a small cap of black color. All these had embroidery on it. He wore his dress on inspection and special day. This was further indication that something had changed. फ्रांस अपने बेंच पे पहले तो बैठता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है वो उसका जो फियर रहता है वो कम करने में. तो जब बैठता है थोड़ा रिलैक्स होता है, तो वो क्या नोटिस करता है कि जो उसके टीचर हैं वो डिफरेंट ड्रेस पहने रहते हैं, और ग्रीन कलर का जो कोट होता है वो पहने रहते हैं, फ्रिल्ड शर्ट पहने रहते हैं, ब्लैक स्मॉल कैप लगाए रहते हैं जिस पे एम्ब्रॉयडरी की गई रहती है. तो ये नॉर्मल ये जो ड्रेस है जो उनके टीचर हैं या तो इंस्पेक्शन डे होता है तब पहनते हैं, या फिर कोई प्राइज़ डे या कोई स्पेशल डे होता है तभी पहनते हैं. तो फ्रांस को लगता है आखिर आज हुआ क्या है, इतनी सारी चीज़ें डिफरेंट लग रही हैं. टीचर ने गुस्सा भी नहीं किया
और क्लास भी पूरा शांत है, सारे लोग सीरियस भी हैं, टीचर के ड्रेस भी अलग हैं, तो कुछ तो हुआ है जो फ्रांस को नहीं पता था। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three concerned cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Additionally, the school was looking strange and formal. Franz was more surprised to see people sitting at the back benches. These benches normally used to be empty. Today, villagers were sitting there quietly. Old M. Hauser was wearing hat. Former mayor, former postmaster, and many other were also sitting in the class. ये सारी चीज़ें तो फ्रांस को अभी अलग लग ही रही थी। वो क्या देखता है कि जो बैक बेंच है तो वो जो हमेशा खाली रहता था, आज के दिन वो सब भरा हुआ था। और बस स्टूडेंट नहीं, जो विलेजर्स थे, जो मिस्टर ओल्ड हॉसर थे वो और हैट लगाए हुए थे वो बैठे थे, फॉर्मर मेयर थे, पोस्टमास्टर थे, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो और बिल्कुल स्टूडेंट की तरह साइलेंटली वो सारे लोग भी उस क्लास में पीछे बैठे हुए थे। तो फ्रांस को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगती हैं।